Good evening, everyone, and welcome to today's session of NutriLife 360. Tonight will be a culmination of all that we've learned in this community and how, with consistency, we can adapt to a better lifestyle for an improved health span. To start the session, it is my honor and privilege to invite Farooq Tarapur. He, ladies and gentlemen, is an Olympian, two-time world champion in sailing, and has had an active sporting career of 40 years. He's won innumerable awards, including the Chhatrapati Shivaji Award and the Arjuna Award. And most importantly, he's a mentor to each and every one of us on the group with the mission Har Ghar Mein Healthy, Har Ghar Medicine Free. Let's welcome him onto this virtual stage and listen to him very, very carefully. Over to you, Farah. Thank you, Ruchita. Good evening, everyone, and welcome to this exciting Monday session. Since we are going to, make a summary today, our community believes on this one basic principle that if you give the body the right amount of nutrition and the right amount of exercise, not too much and not too little, you'd have found the safest way to health. So I decided today that since we are going to summarize everything that we've been talking about in the past few weeks, I'm going to give you 5 points for good health. 2 I've already mentioned, but I'll just repeat that again. That in nutrition, there are macronutrients and micronutrients. Make sure that when you are eating your food, you're getting a certain amount of nutrition in your body. Your body requires a certain level of nutrition. And the best way to bridge this gap is through supplementation through the right source. Supplementation is basically required for the right nutrition that you have not taken or consumed through the food. So it goes without saying, empty calories through burgers, fast food, vada pav and all that is going to have a bad impact on your health. Good things like good quality protein, good quality omega, good quality micronutrients, are going to basically improve your health. Make sure that you are eating the right food at the right time. You're following the circadian rhythm. This is one simple factor that can really change your overall health. I find that people are eating dinner at 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, even 2 o'clock in the morning. And that's never a good idea. Make sure that you create a very healthy and a clean environment around yourself. Make sure that there are no snacks around you, because there is nothing worse than snacking continuously, which has a tremendous impact on your gut health. Yeah. So if you have snacks, if you have biscuits, chocolates, some of those snacky things, wafers, you're going to eat it because you will feel hungry and you'll feel like eating. The good idea is to not have it around. If you don't have it around, there's nothing to eat, you won't eat, and you'll suddenly realize that, it's quite cool. Well, we covered the first point, okay, nutrition. We'll come to the second point, exercise. We said not too much and not too little. Don't immediately try to start running a marathon. If you want to run a marathon, that's great, but then, plan it correctly. But try and see that you're moving after each meal, at least 15 to 20 minutes. If you make sure that if you're overweight and you're losing weight, you're replacing fat with muscle. And the priority should be first and foremost, try and improve your abdominal muscle. The second priority is your leg muscle. The third priority are your biceps. And the fourth priority is your upper body. That should be your priority in the way, you look after exercise. So we have made, on our Slim Trim Sexy Thin program, we have put so many small little exercises that you can do for, 2 minutes, 3 minutes. So if you're in an office, it's a good idea, open it, after every hour, just do a little bit of that and keep moving throughout the day, The more you keep moving throughout the day, better will be your overall health. Better you will stay away from lifestyle challenges and lifestyle diseases like high glucose, lipid profile problems, liver health, renal health, all kinds of, lifestyle challenges will just disappear
if you do these small little things in place here. The third factor, okay, is learning how to deal with stress. It is 100% predictable that you will have stress in your life. But are you letting stress impact you? Or are you having a good coping up mechanism to look after your stress? This is so vital and so important in today's era that we find that everyone is continuously under stress. The children are under stress. I don't know why, but they are under stress. Parents are under stress that they are not able to, have a good grip on the children. So make sure that stress doesn't control you and you control stress. All right. The fourth point is that make sure that you stay away from plastics. Now, it is very difficult to stay away from plastic. Plastic has got into our system real badly. But try and make sure that you are aware that at least if there is a black plastic container, it's worse than a white plastic container. A white plastic container is worse than a colorless plastic container. And anything, if you put this plastic into microwave or into your freezer, if it's subjected to extreme heat or extreme cold, more probability of the microplastics getting into your food and then ultimately coming into your system. So please try and stay, completely and totally away from this kind of stuff, which is today responsible for doing a lot of damage to the body. And the last point I would like to say is that make sure that you are hydrating properly, because hydration is also a very important factor, and that you are not becoming a slave to your screens. Make sure that you are in control of your screens and not the screens in control of you. So if you look after these few points, and today you are very lucky because you're going to be listening from Manoj, who, after he got onto this program, got onto this community, really turned his health around. And his before and after photographs, if you see, you won't even believe the kind of transformation and the health change that he made. He was, massively overweight. He was in triple figures, and how beautifully he brought the weight down. And he's really enjoying good health now. And I hope you listen to him carefully, because what he'll have to say will have a significant impact on your health. So over to you, Manoj. थैंक यू वेरी मच फारूक, थैंक्स अ लॉट। और आप जो भी मेरे बारे में बोलते हो, एक्चुअली ये सब आप ही की बदौलत है, अदरवाइज ये सब मेरे साथ नहीं हो सकता अगर आप मेरे लाइफ में नहीं रहते तो अभी चलते हैं आगे। एंड शेयर कर लो। ओके, रुचिता स्क्रीन दिख रही है? हेलो? Yes, Manoj. ओके, थैंक यू वेरी मच। सो आज का जो टॉपिक है कि हम समरी कर रहे हैं सारी चीज़ें जो हमने सीखी हैं, है ना, अभी तक पिछले कुछ हफ्तों में। तो समरी बेसिकली क्या है? समरी बेसिकली जो कुछ हमने सीखा है, कुछ अच्छी चीज़ें सीखी हैं, और उसको कैसे बिल्ड किया जाए, आज उसके ऊपर थोड़ी सी बात की जा सकती है ना, कि हमने हर बार हर टॉपिक के ऊपर कुछ तो बताया होगा आपको किस तरह से आप कर सकते हो, लेकिन आज की डेट में उसका पूरा एक समरी आपको मिल जाएगा। और हैबिट्स क्यों, इसको हैबिट्स क्यों बोला जाता है? हैबिट्स इसलिए क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप शुरुआत में करते हो पहली बार, तो बाय फोर्स होता है, आप डिलिबरेटली करते हो। लेकिन एक बार जब उसको करते 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 आप उसके यूज टू हो जाते हो, तो आपकी हैबिट बन जाती है, आपको पता ही नहीं चलता कि आप उसको कर रहे हो। जैसे कि सबसे सिंपल एग्जांपल है टूथब्रश का। जब बच्चों को आप टूथब्रश कराओ पहली बार या पहले कुछ बार, तो उनको एक अजीब सा होता है, अजीब सी चिढ़ होती है उनको, और वो नहीं करने लगते हैं। लेकिन आस्ते 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 जैसे जैसे बड़े होते हैं, ये उनके लिए एक रूटीन बन जाता है, और इसके बगैर दिन ही नहीं चालू होता है इनफैक्ट।
और इसीलिए हेल्थी हैबिट कहते हैं। तो हैबिट अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं, और बुरी हैबिट्स हुई तो ऑब्वियसली उसके रिजल्ट्स बुरे होंगे, और अच्छी हैबिट्स हुई तो ऑब्वियसली उसके अच्छे रिजल्ट्स होंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर कहते हैं बिल्डिंग हेल्दी हैबिट्स ना, हम अच्छी हैबिट्स को हम हेल्दी हैबिट्स में कर रहे हैं बिकॉज इट इज रिलेटेड टू हेल्थ। तो ये हेल्दी हैबिट्स क्या है, यहाँ पर जैसे कि सर्कल में एक लिखा है तो ये पहली चीज है जिसको हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ऐसे कुछ आपको 9-10 पॉइंट्स यहाँ पर मिलेंगे आज की डेट में, उसमें से कई पॉइंट्स फरूक ने कवर कर लिए हैं। यहाँ पर थोड़ा डिटेल में आपको मिल जाएगा और हल्का सा, और उसको आप देख सकते हो। तो जैसे कि फरूक ने कवर किया ही था कि आपको पानी प्रॉपरली पीना चाहिए, आपको हाइड्रेटेड रहना चाहिए, आपकी बॉडी में कभी ऐसा समय नहीं आना चाहिए कि आपकी बॉडी को पानी की कमी है। आपको आपके बॉडी को हाइड्रेटेड रखना ही चाहिए, आपको दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए, ये आपको एक आदत बनानी है। ओके, आपको ये पता तो चल जाएगा कि आपकी बॉडी के अंदर पानी कम है, लेकिन ये मौका नहीं आना चाहिए। जब आपको प्यास लगेगी आपको पता चल जाएगा कि आपको पानी की कमी है, लेकिन तब तक तो 2% ऑफ आपके 2% आपके बॉडी का टोटल वाटर तो लॉस हो चुका होता है। आपको मस्कुलर क्रैम्प आ सकते हैं, हेडेक आ सकता है, आपको थकान हो सकती है, रफ स्किन हो सकती है, आप कॉन्सेंट्रेट साथ काम पे नहीं कर पाओ बिकॉज ऑफ थर्स्ट, प्यास की वजह से, आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी होने की वजह से। एक और चीज़ जो इसमें मैं ऐड कर सकता हूँ वो ये है कि जो ठंडे जगह पे रहते हैं, ठंडे इलाकों में रहते हैं, या फिर जिस इलाकों में विंटर ज़्यादा पड़ता है ना, ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है, वहाँ पर उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके बॉडी के अंदर पानी की कमी है, क्योंकि ठंड लगती है, पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती ऐसा उनको लगता है, लेकिन बॉडी कंज्यूम करता है पानी आपको। और उसी वक्त आपको ऐसा, जैसे जो क्रैम्प और हेडेक की बात आती है या थकान की बात आती है, ये वहीं पर आएगा। ओके, तो इसलिए आपको पानी पीते रहना चाहिए। अब उसको आपको हेल्दी हैबिट करने के लिए आपको क्या क्या बातें याद रखनी चाहिए, कब कब आपको पानी पीना चाहिए। सुबह उठ के पी सकते हो तुरंत, वर्कआउट के बाद पी सकते हो, खाना खाने के आधे घंटे पहले, नहाने के पहले, सोने से पहले, जब आप बीमार हो तब, और एक बहुत बीमारी में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि नहीं, ताकि आपकी बॉडी अच्छी तरह से फंक्शन कर सके, जब आपको थकान आ जाए। लेकिन ये मौका नहीं आना चाहिए, है ना। जब भी आप ऐसे लोगों के अगल बगल में हैं जो बीमार हैं या फिर इन्फेक्टेड हैं, तब आपको पानी पीते रहना चाहिए। लेकिन देखो बात यह है कि ये मौका नहीं आना चाहिए, आपसे पीते रहना चाहिए। यहाँ पर कुछ पॉइंट ऐसे लिखे हैं कि आपको कब कब पीना चाहिए, और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको उनका वेट नहीं करना चाहिए। आप उसके लिए क्या कर सकते हो, जैसे मैं करता हूँ 1 लीटर की बोतल भर के हमेशा अपने पास रखता हूँ, अपने सामने, और फिर हम उससे पीते रहता हूँ। जब जब ऐसा लगता है पीते रहना चाहिए, पीते रहना चाहिए, पीते रहना चाहिए। और दिन भर में आप शाम के 7-8 बजे तक अगर आप देखोगे तो 2 से 3 बोतल मेरी पूरी हो जाती है। और यही चीज़ हमने अपने घर पे एक सिस्टम बना रखा है, सब अपने अपने लिए एक बोतल रखते हैं साथ में, और जो ऑफिस में है वो ऑफिस में अपने बॉटल सामने रखते हैं, जो घर पे है वो दिन भर घर पे अपने साथ में बॉटल रखते हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं तो बॉटल साथ में लेके चलते हैं ना। ये भी आदत हमने बना रखी है, ताकि ऐसा ना हो कि कई देर तक हमको पानी नहीं मिले या नहीं पी पाए, तो फिर वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। ओके, दूसरी हैबिट, आपको ये समझना पड़ेगा कि पोर्शन साइज और सर्विंग साइज में फ़र्क है। सर्विंग साइज बेसिकली, पोर्शन साइज बेसिकली क्या होता है कि आप एक पोर्शन, जिसको कि नॉर्मली 1 कप माना जाता है इसको, ओके, और जो आप खाते हो दैट इज योर सर्विंग साइज, कि आपको कितना खाना है। ऐसा हो सकता है कि 1 कप हो एक पोर्शन साइज, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा खा लिया, 2 पोर्शन 3 पोर्शन, तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए कि आपने कितना खाना है। ओके, आपको प्रोटीन खाना होता है, एक उसका मेजरमेंट है, आपको वेजिटेबल खाना होता है, उसका एक मेजरमेंट है, आपको फैट खाना है, उसका एक मेजरमेंट है, कार्बोहाइड्रेट खाना है, उसका एक मेजरमेंट है। लेकिन आप हर बार कैसे उसका वजन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। उसका एक सिंपल टिप है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप पाम के सेंट्रल को, अगर आप जितना, अगर आपने प्रोटीन खा लो
आपका काम हो गया, है ना। एक मुट्ठ भर आपने वेजिटेबल खा ली, आपका काम हो गया। कार्बोहाइड्रेट आपने एक अंजुल भर के, मतलब दोनों हाथों को ऐसा बना के, कप जैसा बना के। लेकिन ये ऐसा नहीं है, देखो इसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है कि कार्बोहाइड्रेट जो हम दोनों हाथ बता रहे हैं, तो ये बनने के बाद, है ना। जैसे कि चावल और भात, भात बनने के बाद होता है, चावल पहले होता है, जब कच्चे चावल जिसको बोलते हैं। तो जो कच्चे चावल है वो आप इतना नहीं लोगे, है ना, पूरा, तो बनने के बाद इतना लोगे आप। और फैट आपने थंब के अपर पार्ट के जितना आपने खाना है, विच इज़ अराउंड 15 ml पर डे। आप खाने को चबा के अच्छी तरह से खाएं, ये एक आदत है जो आपने करनी है। मैं बीच में कहीं पढ़ रहा था कि जापान में कहीं पर एक ऐसा है जहाँ पर हेल्दी रहने के टिप्स दी जाती हैं और वहाँ पर ट्रेन किया जाता है ना। मैंने सुना है कि वो तकरीबन 1 महीने का कोर्स है जहाँ पे आपको रखा जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ कुछ जगह पे आपने देखा होगा विपासना वगैरह होती है, वैसे वहाँ पर होता है। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, 2 दिन आपको सिर्फ वो चबा के खाने की प्रैक्टिस कराते हैं कि आप जो भी खा रहे हो अच्छी तरह से चबा के खाओ। जैसे हमने बचपन से भी सुना होगा कि हमें कोई भी निवाला जब हम मुंह में डालते हैं तो हमें 32 बार उसे चबाना चाहिए। वहाँ पर 2 दिन तक आपको सिर्फ चबाने के ऊपर फोकस कराया जाता है। उसके बाद फिर अगले 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 स्टेप पे जाया जाता है। फ़ायदा क्या होता है, स्लो खाने से आपका डाइजेशन अच्छा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स आपके मुंह से ही घुलने लग जाते हैं। जब खाना खाने टाइम हमारे मुंह में पानी आता है, तो वही चीज़ है जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स को मुंह से ही डाइजेस्ट करना चालू कर देती है। जितना आप ज़्यादा चबाओगे, आपको लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, तो आप कम खाओगे और कम खाने की वजह से आपकी कैलोरी रिड्यूस होगी, क्योंकि आप कंज्यूम ही कम करोगे। क्योंकि आप अच्छी तरह से खाओगे तो बॉडी उसे अच्छी तरह से डाइजेस्ट करते रहेगी, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने बॉडी अपने शरीर अपने अंदर एब्जॉर्ब करते रहेगी, जिससे आपके काफ़ी देर तक आपको लगेगा कि आपका पेट भरा हुआ है, जिसके वजह से आपको बार बार भूख नहीं लगेगी, जिसकी वजह से फिर आप अगेन गलत खाना नहीं खाओगे, और जिसकी वजह से आप फिर ज़्यादा भी खाना नहीं खाओगे, और इसकी वजह से आपका वेट हेल्दी रहेगा। और वेट अगर आपका हेल्दी रहा, मतलब जो पैरामीटर्स हैं उसके अंदर रहा, तो आपको कई सारी बीमारियों से आप दूर रह जाते हो। ओके, तो हम खाने की आदत को कैसे अपने अंदर डाल सकते हैं, आप ये दे सकते हो कि आप अपने मील को ना प्लान करिए कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे दिन भर में या इस वीक में किस वक्त क्या बनाना है या क्या खाना है। आप अपने खाने को, जो भी आप खाना प्लान करते हो, उसके अंदर फाइबर को काफ़ी महत्व दीजिए, क्योंकि जितना फाइबरस खाना होगा आप उसको उतना चबाओगे, और जितना ज़्यादा आप चबाओगे तो अगेन जैसे कि हमने पहले बताया कि चबाने से कई सारे फायदे हैं, है ना, वो एक फ़र्क पड़ जाएगा। आप खड़े होके खाना मत खाइए, ये भी एक चीज़ है। खड़े होकर खाने से क्या होता है, खड़ा रहना और बैठने में एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ जाता है। खड़े रहने पे आपको लगता है कि आप जल्दी जल्दी में हैं, और जब आप बैठ के खाते हैं तो आप एक शांत स्थिति में खाना खाते हैं। जब जल्दी जल्दी खाना खाओगे तो आप निगलना चालू कर दोगे, और हो सकता है कि आप ज़्यादा भी खाना खा जाओ। ओके, आप स्लो स्लो खाना खाइए। और जो सबसे अच्छा टेक्निक है, जिसको मैंने भी ट्राई किया और उसका बहुत फ़र्क पड़ता है, अगर आप चम्मच से खाना खा रहे हैं तो एक निवाला जब आपने चम्मच से मुंह में डाल दिया, उसके बाद चम्मच को प्लेट में या तो बाउल में रख दो, हाथ से छोड़ दो, क्योंकि चम्मच जैसे ही हाथ में रहता है तो हम उसको बार बार जल्दी जल्दी मुंह की तरफ ले जाते हैं, जिसकी वजह से हम अच्छी तरह से चबाते भी नहीं हैं और ज़्यादा खाने की टेंडेंसी हो जाती है। जब आप खा रहे हैं उस वक्त बातें ना करें, क्योंकि बात करते करते आपको पता नहीं चलता कि आपने कितना खा लिया। ओके, क्योंकि आप बातों में उलझे रहते हैं। एक चीज़ और है, वैसे तो इंसानों को वैसे भी खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेचर ने हमें ऐसा बनाया ही है। हम दो काम, हम खाना खाना और बात करना दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ बच्चे कर सकते हैं 6 महीने तक, है ना, पैदा होने का 6 महीने तक वो रोते रोते दूध भी पी जाते हैं, है ना। लेकिन हम ये नहीं कर सकते, हम बात करते करते या आवाज़ करते करते खाना नहीं खा सकते, तो नहीं करना चाहिए। और जब भी आप खाना खा रहे हों तो टीवी, मोबाइल, लैपटॉप से दूर रहें। अदरवाइज़ क्या होता है कि हमारा ध्यान वहाँ रहता है और हमें स्क्रीन पे रहता है और हमें पता नहीं चलता कि हमने कितना खा लिया, और अगेन जिसकी वजह से हम ज़्यादा खा लेते हैं।
एक और आदत है, आपको आपकी जो क्रेविंग है, मतलब भूख जो लगती है आपको बार बार और इच्छा होती है खाने की, उसको भी मैनेज करने का एक आदत डेवलप करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे सिग्नल ऐसे हैं, बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर केमिकल्स ऐसे हैं जो हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। लेकिन वो सिग्नल हो सकता है कि सही ना हो, क्योंकि हमारा शरीर की एक आदत है, अगर आपको प्यास भी लगे या भूख लगे, वो सिग्नल एक ही भेजता है और हमें लगता है भूख लगी है। प्यास की भी हो सकती है। तो उसको मैनेज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे कि हमने पहले कहा, बार बार आप पानी पी लें तुरंत, है ना। और पानी अगर आपकी बॉडी में अच्छा रहेगा तो हो सकता है कि आपको बार बार क्रेविंग भी ना हो। तो पहला स्टेप, आप पानी पी लें। कीप हेल्दी फूड्स आप अपने सामने रखें। आप फ्रूट रख सकते हैं, आप नारियल पानी रख सकते हैं, आप प्रोटीन पाउडर पानी में डाइल्यूट करके पी सकते हैं। ओके, फिर भी आपको ये है। और एक चीज़ और है जो जिसकी वजह से भी बार बार क्रेविंग होती है, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस अगर आपने अपना रिड्यूस कर दिया तो आप शायद नहीं खाओ। यहाँ पर मुझे एक अपना पुराना एक एक बात याद आ जाती है जो मेरे साथ घटना हुई थी। तकरीबन 20-22 साल पुरानी बात होगी। रात को 1:30-2 बजे के आसपास मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं बहुत टेंशन में था, नींद नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों। और मैं एकदम घर के अंदर ही घूम रहा था, चक्कर मार रहा था कि क्या है क्या है क्या है, कुछ सोच रहा था। अचानक उस स्ट्रेस में मैंने फ्रिज खोला। फ्रिज खोल के देखा कि सामने एक जैम की बोतल पड़ी है, 400 ग्राम जैम था उसके अंदर। मैंने वो जैम की बोतल निकाली, चम्मच लिया और खाना चालू किया। टीवी देखते देखते, खाते खाते मुझे पता ही नहीं चला मैं 400 ग्राम कब खा गया। विदिन 15 to 20 मिनट्स पूरी जैम की बोतल खाली हो चुकी। तो ये एक इफेक्ट पड़ता है। कई लोग स्ट्रेस में दारू पी जाते हैं, ओके, विच इज़ अगेन बैड। कहने का मतलब है कि अगर आप स्ट्रेस को कंट्रोल कर लें तो भी आपकी क्रेविंग बहुत कंट्रोल हो सकती है। पांचवी आदत जो आपको अच्छी आदत सीखनी है वो है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग कई तरीके की हो सकती है। डायफ्रैग्मेटिक हो सकता है, जिसमें आप नाक से सांस लेते हैं, मुंह से छोड़ते हैं। नेसल ब्रीदिंग, जिसमें आप एक साइड की नाक से राइट साइड से अगर आपने सांस ली है तो लेफ्ट हैंड साइड से निकाल सकते हैं, इसको कपालभाति बोलते हैं। आप उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, कि मतलब अगर आपने पहले राइट से लिया है, लेफ्ट से निकाला है, तो आप लेफ्ट से लेके राइट से निकाल लो, ये भी होता है। एक होता है माउथ ब्रीदिंग, जिसमें आप मुंह से ही सांस लेते हैं और मुंह से ही सांस को छोड़ते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरह की सांसें हैं जो आपको लेने को सीखना चाहिए। और दिन में अगर आपने कम से कम इसको अलग अलग टाइम पे आपने 2-2 मिनट के लिए अगर 4-5 बार भी कर लिया, सो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। कुछ एक प्राणायाम है अलग अलग तरह के, और उसके इफेक्ट है, ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, बहुत बढ़िया है, बहुत काम का है। अलग अलग कारण के लिए अलग अलग तरह के सांस के प्राणायाम है। ओके, इसमें आपको मैं पहला एक एग्जांपल दे देता हूँ, जिसमें आप 6 सेकंड तक इनहेल करते हैं, सांस को लेते हैं, है ना। आप उंगली पे काउंट कर सकते हैं 6 सेकंड, सामने स्टॉप वॉच रख सकते हैं। आप 6 सेकंड आप सांस अंदर लेते रहेंगे, 0 सेकंड होल्ड करना है, मतलब रोकेंगे नहीं। जैसे आपका 6 सेकंड सांस लेके हो गया, अगले 6 सेकंड आपने उसको बाहर निकाल दिया। ओके, ये एक तरीका है। दूसरा है, आपने 8 सेकंड तक अंदर लिया, 1 सेकंड होल्ड किया, फिर 8 सेकंड तक आप लंबा सा बाहर निकालते रहे और फिर 1 सेकंड होल्ड किया। इस तरह से अलग अलग पैटर्न है, और अलग अलग पैटर्न के अलग अलग इफेक्ट्स हैं आपके बॉडी के ऊपर। कुछ आपको एनर्जी देंगे, कुछ आपके बॉडी को शांत करेंगे, कुछ आपका मेंटल बैलेंस को बना के रखेंगे। ये आप हैबिट आप अपने लाइफ के अंदर ला सकते हैं। एक और आदत, नींद। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आज की जनरेशन तो मेरे ख्याल से बहुत बिगाड़ दी है। रात को 2-2, 3-3 बजे तक सोते नहीं हैं, दिन में फिर सुबह लेट उठते हैं। कभी कभी सुबह काम पे जाना होता है तो फिर एकदम थके हारे काम पे चले जाते हैं। 6 से 8 घंटे की नींद एक नॉर्मल है, अलग अलग बॉडी के हिसाब से। किसी को 6 घंटे लगता है, किसी को 8 घंटे लगता है, किसी को 7 घंटा लगता है, किसी को 6.5 घंटा लगता होगा। ओके, लेकिन उससे अगर कम ज़्यादा है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ है।
नींद अगर आपकी अच्छी रही तो आपका कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा, आपकी मेमोरी अच्छी रहेगी, आपकी क्रिएटिविटी अच्छी रहेगी, आप अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, आप नेगेटिव चीज़ के ऊपर नहीं जाएंगे, रात को नहीं जागोगे आप तो फिर रात को क्रेविंग नहीं होगा, आप उल्टा सुल्टा खाना नहीं खाओगे, है ना। और आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रांग बनेगा नींद की वजह से। क्या कर सकते हैं इसके लिए? आप अपना सोने का एक कंसिस्टेंट रूटीन बना लें। आज की डेट में हर फ़ोन में स्लीप अलार्म आना चालू हो गया है, आपको सिर्फ उसे एक्टिवेट करना है। ओके, आपको अपने मोबाइल का टाइम को लिमिट करना है सोने से पहले। देखिए, आप इसको ना ट्राई कर सकते हो प्रैक्टिकली अपने ऊपर, और फिर देखिए उसका इफ़ेक्ट क्या है। आपको तो पता ही है कि आप मोबाइल लेते हो तो आप पता लगाइए कि कितनी देर के बाद आपको नींद आती है। जब आप सोते वक्त मोबाइल या लैपटॉप या किसी और स्क्रीन के सामने रहते हो तो देखिएगा कितनी देर के बाद आपको नींद आती है, और उसी के सामने आप कुछ दिन किताब हाथ में लेके बैठिए। कोई भी स्क्रीन बंद कर दो जो आपके सामने है, और किताब लेके उसको पढ़ने की कोशिश करें, देखिए कितनी जल्दी नींद आती है। तो किताब लेके अगर आप बैठेंगे तो आपको जल्दी नींद आएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जो स्क्रीन है, जो ब्लू लाइट छोड़ती हैं, उसको आप दूर रखिए अपने लाइफ से, ताकि आपको नींद टाइम पे आ जाए। और सोने से पहले आप हैवी मील या हैवी खाना नहीं खाएं, ओके, क्योंकि रात को बॉडी हमारी रिपेयर मोड में रहती है, और अगर आपने खाना ज़्यादा खा लिया तो बॉडी को तो फिर कन्फ्यूजन हो जाता है, तो खाना पचाए कि बॉडी को रिपेयर मोड के लिए काम करे, एनर्जी कहाँ जाए, एनर्जी कहाँ डालें। एक एग्जांपल है, सोने से पहले आप बाथ ले लें, नहा लें, पैजामा पहने, बाल कंघी करें, टीथ को ब्रश करें, बुक पढ़े, और देखिए कैसे नींद आपको अच्छे से आती है। बात के ऊपर मैं आपको छोटा सा एक चीज़ और ऐड कर लेता हूँ। अगर आप रात को नहा रहे हैं, गर्म पानी से नहाएं, ओके, और सुबह नहा रहे हैं तो ठंडे पानी से नहाएं। दोनों के अलग अलग इफेक्ट हैं और बहुत अच्छे इफेक्ट हैं, ट्राई करके देखिएगा। हालांकि मैंने पहले कहीं बोला है, अगली बार भी कहीं बोलूँगा, ओके। एक और चीज़ है नेगेटिव थॉट्स, जिसकी वजह से फिर स्ट्रेस आता है, ओके। आपको नेगेटिव थॉट से बाहर आना है और पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाना है, क्योंकि कैसा है कि जैसे आपके थॉट्स होंगे वो डिटरमाइन करेगा कि आपकी बिलीफ कैसी होंगी, और जैसे आपकी बिलीफ होंगी वो इम्पैक्ट करेगा आपके फीलिंग्स को, और जैसे आपकी फीलिंग्स होगी उससे आपके फिर एक्शन होंगे, और जैसे आपके एक्शन होंगे उससे फिर आपके नए थॉट्स बनने चालू होंगे। अभी आप इस पर सिर्फ नेगेटिव थॉट डाल दीजिएगा तो आपके बिलीफ नेगेटिव बनने जाएगी, आपकी फीलिंग नेगेटिव रहेगी, आपके एक्शन सही नहीं रहेंगे, और फिर आपको वापस से नेगेटिव थॉट आएगा। आपको उसको पॉजिटिव थॉट करना है। इसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा कि आप किस तरह से कर सकते हैं। एक छोटा सा टिप मैं देता हूँ जो मैं अप्लाई करता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ सोल्यूशन मोड। सोल्यूशन मोड बेसिकली क्या है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, देखो जैसे ये फरूक जी ने भी थोड़ी देर पहले बोला था कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको स्ट्रेस नहीं आएगा, प्रॉब्लम नहीं आएंगी, ओके, लेकिन उसको आप किस तरह से हैंडल करते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन मोड मेरे लिए बहुत अच्छी तरह से काम किया है। उसका मतलब ये है कि कभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई नेगेटिव थॉट आया, नेगेटिव थॉट बेसिकली मतलब कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में, प्रॉब्लम आ गई, ठीक है तो आई है तो उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। अवॉइड कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। देखो जैसे प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको आपको अवॉइड ही कर देना अच्छा होता है, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम है जिसको आपको सॉल्व करना है, तो आप सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर मत सोचिए, सोल्यूशन के ऊपर सोचने जाइए कि ठीक है ये प्रॉब्लम है, अब इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे ही आप सोल्यूशन मोड पे जाओगे और उस सोल्यूशन मोड से जैसे ही आपको एक भी रास्ता मिला, भले ही वो थोड़ी देर के बाद इम्पॉसिबल हो, अलग बात है, लेकिन आप एकदम पॉजिटिव थिंकिंग में आ जाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ यहाँ से तो मैं निकल सकता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, यहाँ से हम बाहर आ सकते हैं। तो इस तरह से आप सोल्यूशन मोड पे जाके नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। इसका अगर आप देखेंगे, हमारे जो वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है इसमें बहुत बड़ा इफेक्ट है। कई लोगों को हम जब बात करते हैं वेट मैनेजमेंट के लिए तो शुरू में बोल देते हैं कि नहीं मेरा तो वजन कम ही नहीं हो सकता, है ना, कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मेरे से हो ही नहीं सकता, मैंने बहुत ट्राई कर लिया है,
अब नहीं होगा। तो वहाँ पर अगर शुरुआत में जहाँ भी हमने देखा है कि अगर वो ये सोच के चलते हैं सिर्फ कि नहीं हो सकता है और कर सकते हैं, ये सबसे पहला स्टेप है। जब तक वही नहीं आएगा कुछ नहीं हो पाता। और जो इंसान ये सोच के चालू करता है उसको आगे सोल्यूशन मिल जाता है और वो सक्सेस हो जाता है। और ये सिर्फ वेट मैनेजमेंट में ही नहीं है, वैसे आप देखोगे लाइफ में किसी भी चीज़ में यही प्रिंसिपल लागू होता है और इसी से आप काम कर सकते हो। फिर एक ऐसी चीज़ें हैं जो आप सोशल लाइफ में रहते हुए करते हो लेकिन जो गलत है। जैसा एग्जांपल के लिए यहाँ पर तीन चीज़ें दिखाई गई हैं। एक, जब भी आप समझो फैमिली देखने जाते हैं फैमिली के साथ पिक्चर देखने जाते हैं तो एक नॉर्मल है ना कि पॉपकॉर्न खाना है। अभी मुझे कभी समझ में नहीं आया कि थिएटर का पॉपकॉर्न से क्या लेना देना है ना, लेकिन नहीं, पॉपकॉर्न खाना है। फिर उसमें आजकल कैरामल वाला भी आ गया है। एक तो मतलब करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो प्रॉब्लम पहले से कॉर्न में था, ऊपर से उन्होंने शक्कर ऐड कर दिया। कई साल तक तो हमको पता ही नहीं था कैरामल होता क्या है, कैरामल कस्टर्ड क्या होता है यही पता नहीं था हमको। तो हमको तो लगता था कोई बड़ी अच्छी चीज़ होगी जो हमको खिलाई जा रही है। बाद में मालूम पड़ा है तो जली हुई शक्कर है। ओके, तो ये आदत जो है पिक्चर देखते देखते कौन खा लेना, मतलब पॉपकॉर्न खा लेना या समोसे खा लेना या कोल्ड ड्रिंक पी लेना, उसमें भी फिर 300 ml 500 ml है ना, बड़ा बड़ा जग जैसा, बहुत बेकार है। इनसे आपको बाहर आना है। हम कहीं जाते हैं जहाँ पर ब्रेकफास्ट है ना पैकेज का हिस्सा होता है, इतना लंबा चौड़ा स्प्रेड होता है, देख के आप सोच ही नहीं पाते हो। मैं इसको कैलकुलेट कर चुका हूँ, कभी कभी हम सिर्फ ब्रेकफास्ट में ही तकरीबन 1200 से 1500 कैलोरी खा जाते हैं। सिर्फ ब्रेकफास्ट 1200 से 1500 कैलोरी एक टाइम पे खा जाते हैं। उसमें अगर किसी ने अगर स्वीट ज़्यादा खा लिया या फिर कोई फैटी आइटम खा ली, ऑमलेट खा लिया, ऑमलेट के अंदर चीज़ भरवा दिया, तो फिर तो और भी आगे जा सकता है। ओके, तो ये भी एक सोशल मतलब सोसाइटी के साथ रहते हुए आपके सामने आ जाती है चीज़ जो मतलब उतनी हेल्दी नहीं होती है। लेकिन अगर आप उसको अगर दिमाग से अगर सोच लें कि इसके अंदर कौन सी चीज़ मैं खा सकता हूँ, भले उसको आप ज़्यादा भी खा लो कोई इशू नहीं है ना। जैसे उसके अंदर 100 से वेजिटेबल होते हैं, बहुत बढ़िया, खा जाओ जितना खा सकते हो। उसमें सलाद होते हैं, स्प्राउट्स होते हैं, खा लो कितना खा सकते हो। ओके, तो ये चीज़ें अपने को थोड़ी सी सीखनी है। जो लोग टूर पे होते हैं, जैसे मैं जब जॉब पे था तब टूर पे था, अभी घूमने का शौक है तो घूमते रहता हूँ, बहुत अनहेल्दी फूड खाते हैं। और ये सबके साथ, क्योंकि मजबूरी है, साथ में कुछ लेके नहीं रखते हैं हेल्दी चीज़। लेकिन अब जब से हमको ये पता चला है ये सब गड़बड़ है तो हम साथ में लेके चलते हैं। हम प्रोटीन मेरे साथ में हमेशा रहता है। अगर मैं एक दिन के लिए भी घर से बाहर जाऊँ, मेरे साथ में हमेशा काकड़ी, गाजर या टोमेटो हमेशा साथ में रहता है। अगर मैं घर से बाहर जाऊँ तो फ्रूट मेरे साथ में रहता है। 1-2 दिन का स्टॉक तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाहर से खरीद लेंगे। ओके, लेकिन हमें ये देखना है कि अगर हम बाहर जा रहे हैं तो अगर हेल्दी अनहेल्दी खा रहे हैं तो कितना खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको मैनेज कैसे कर रहे हैं। जैसे मुझे भी खाने का बहुत शौक है, हम भी अनहेल्दी खा लेते हैं। अगर कहीं किसी अलग सिटी में गए तो वहाँ का कोई यूनिक चीज़ है जो कहीं और नहीं मिलती, उसको ट्राई करना है, बट देन उसको फिर हम कैलोरी बर्न आउट करके एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, ये भी हेल्दी हैबिट्स में है। ये जो सोसाइटी के साथ रहते हुए जो हम है ना गलत चीज़ें कर देते हैं अपने साथ, उससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, कीप हेल्दी स्नैकिंग हैंडी। आप अपने साथ में हेल्दी स्नैक्स साथ में रखिए हमेशा। खाने के टाइम को स्टिक करिए कि नहीं, ये टाइम पे खाऊंगा, इसके बाद नहीं खाऊंगा, है ना। जैसे मैंने बताया कि घूमने जाने से पहले आप अपने खाने को प्लान कर लो, क्या क्या साथ में ले जाना है, क्या क्या नहीं ले जाना है, कैसे खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना खाओगे, कब खाओगे, कैसे खाओगे, है ना। कोई भी इवेंट में अगर आप जा रहे हो और अगर आपको पता है कि वहाँ हेल्दी खाना मिल रहा है तो उससे पहले मत खाइए। अगर आपको लगता है कि मेरे को अनहेल्दी खाना ज़्यादा मिलेगा, आप पहले ही हेल्दी खाना खा के चले जाओ, ताकि अगर आपने अनहेल्दी भी खाया तो कब कम खाओगे। माइंडफुल ईटिंग
माइंडफुल ईटिंग तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो कि हमारे सेशन में कहीं ना कहीं बताया होगा, एक चैप्टर ही ईटिंग के ऊपर रहा होगा। बेसिकली कब खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, और कब कितना खाना है ना, ये सारी चीज़ें माइंडफुल ईटिंग के अंदर आती हैं। क्यों खाना है, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें अगर आप सोच के चलोगे तो आप अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे। टेबल एटिकेट में आप बेसिकली ये समझ सकते हो, आप अपना पोर्शन साइज, अपना सर्विंग साइज, इसका ध्यान रखिएगा। क्या चीज़ कितना खा रहे हो, चबा के खा रहे हो, है ना। पॉटलक गैदरिंग, ये भी एक टाइप की सोशल प्रॉब्लम ही है, जिसमें क्या होता है कि समझो 7 दोस्त हैं, 7 दोस्तों ने आपस में प्लान किया कि भैया एक चीज़ तू ले आ, एक चीज़ तू ले आ, ऐसे करके 7 लोगों ने 7 सामान लाया। और हो सकता है कि आपके दोस्तों को पता नहीं हो कि हेल्दी खाना क्या होता है और कैसे उसको कंट्रोल किया जाए। आप सिर्फ हेल्दी खाना ले जाओगे, लेकिन आपने तो एक पोर्शन ले गया ना, वो सब खा जाएंगे, कितना आपको मिलेगा। तो इन चीज़ों से आप दूर रहिए। ओके। 9वीं बात, आर यू मूविंग इनफ, जो कि फारूक ने कहा था, एक्सरसाइज। आपको खाने के बाद कम से कम 10 मिनट चलना है, बैठना नहीं, लेटना नहीं। जब भी आप खाते हो, जैसा भी जो भी खाते हो, आपको 10 मिनट चलना है, ये सोच के चलिए, आदत बना लीजिए। चलने से क्या क्या होगा, आपके ब्रेन को पॉजिटिवली इफेक्ट करता है। ये तो इसका तो मैं गवाह हूं कि जब आप चलोगे आप एकदम खुश रहते हो, दिन भर खुश रहते हो। ओके। और गुस्सा नहीं आता, पता नहीं कौन से केमिकल चेंजेस होते हैं दिमाग के अंदर। ये आपकी नींद के लिए अच्छा है, ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है, ये आपके टेलोमेर एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा है। टेलोमेर एक्टिविटी क्या होता है, टेलोमेर एक्टिविटी बेसिकली जो आपके सेल्स हैं वो बूढ़े होने लगते हैं, और एक इंसान क्या है, सेल का गुच्छा। तो अगर सेल बूढ़े हो रहे हैं मतलब आप भी बूढ़े हो रहे हो, आपकी स्किन लटकने लग जाएगी जल्दी। लेकिन एक्सरसाइज करने से टेलोमेर एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे आपका बूढ़े होने की जो स्पीड है थोड़ी कम हो जाती है। ओके। आप किस तरह से इंश्योर करेंगे कि आपकी बॉडी एक्टिव रहे, है ना, कि एक ही जगह बैठी न रहे। आप सीढ़ी ले सकते हैं, आपको जब भी ब्रेक मिले आप थोड़ा वॉक कर लें। अगर आप ऑफिस में हैं तो हर 1 घंटे में आप ये देखें कि आप अगर आपकी 2-3 मंजिला ऑफिस है तो आप मंजिल में ऊपर नीचे उतर जाएं, या फिर ऑफिस के अंदर ही चल लें, थोड़ा सा वॉशरूम होके आ जाएं। ओके। अगर आप घर पे हैं, कुछ काम नहीं है, जाके अपने किसी दोस्त से मिलने चले जाएं। अगर आप अपने ऑफिस में जा रहे हो और हो सकता है कि अगर आप 2-4 किलोमीटर अगर आप चल पाओ तो उतना आप आराम से चल के जाइए, गाड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है साथ में। ओके। अगर आप किसी को कुछ मैसेज देना है, मेल से मत दिए, जाके मिल के आके दे दो अगर हो सकता है तो। कुछ छोटी मोटी खरीदारी करनी है, मार्केट जानी है नियर बाई के, आप जाके खुद चल के जाके लेके आइए। तो ये सर कई सारे ऐसे टिप्स हैं जिससे आप अपना एक्टिविटी को चालू रख सकते हो। एक ये जो अच्छा है पार्क फर्दर अवे, अगर मैं जब भी कहीं जाता हूँ किसी को मिलने के लिए, मैं 1 किलोमीटर पहले से देखने लगता हूँ मुझे पार्किंग कहाँ मिल रही है। इसके 2 फायदे हैं, एक तो ये कि मुझे पता है जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ पार्किंग की प्रॉब्लम आएगी, और वहाँ पर फिर मुझे टाइम उधर वेस्ट करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा क्या है, मैं पहले से देखने लग जाता हूँ, जैसे मुझे कहीं पार्किंग मिलती है मैं लगा देता हूँ। तो उससे क्या होता है, 1 किलोमीटर से आधा किलोमीटर तकरीबन मेरे को एक चलने का टाइम मिल जाता है, और जो गाड़ी पार्क करने के लिए मुझे टाइम वेस्ट करना होता है वो भी नहीं करता। तो ये ऐसे टिप्स हैं जिसकी वजह से आप अपनी एक्टिव बॉडी को एक्टिव रख सकते हैं, रादर देन एक जगह बैठे रहने से। आपके इमोशन को आपको कंट्रोल करना होगा ना, यही है जो स्ट्रेस की बात आती है। क्योंकि जब भी आपको स्ट्रेस होते हैं, आप कंफर्ट फूड की तरफ आराम से झुकाव हो सकता है। जैसे कि मैंने अपना एग्जांपल दिया, रात के 1:30 बजे मैं घर के अंदर घूम ही रहा था, फिर मैं सिर्फ फ्रिज खोला और एकदम कंफर्ट फूड, मतलब जो एकदम हैंडी है, सामने मिल गया, खा लिया, जो टेस्टी लगता है, बचपन से जो अच्छा लगता है। तो मीठा तो उसमें सबसे अच्छा है, सभी को पसंद आ जाता है, मीठा है, तला हुआ है। ओके।
और ये सारी चीज़ें देखो हाई इन शुगर होती हैं, हाई इन फैट्स होती हैं, और जिसके वजह से बाद में आपको खाने के बाद फिर गिल्ट भी होता है, यार ये क्या कर लिया मैंने, और फिर उसके वजह से वापस स्ट्रेस आता है। तो ये एक साइकिल में आप फंस जाते हो। तो इसलिए अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल रखो, अगेन वही सॉल्यूशन मोड पे जाके जो मैंने बताया था, है ना, तो इसको तोड़ने के लिए आप क्या कर सकते हो? अगर आपको पता है कि आपको कोई कोई इमोशन है जिसकी वजह से आप खाने की तरफ झुक जाते हो, आप उसका कोई हेल्दियर रास्ता निकालिए। हेल्दियर रास्ता मतलब ये कि या तो आप पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ चले जाए, तो कोई हेल्दी खाना खाइए। जैसे कि हमको पता है, अगर आप खाने की तरफ जा रहे हैं तो माइंडफुल ईटिंग हैबिट जो है उसको आप ध्यान में रखिएगा। आपको अपने गोल सेट करने पड़ेंगे। गोल सेट करने पड़ेंगे। गोल फाइनेंस के भी हो सकते हैं, गोल हेल्थ के भी हो सकते हैं, गोल फैमिली के लिए भी हो सकते हैं। और उन गोल्स को आप छोटे छोटे टुकड़ों में काटिए, तोड़िए, और फिर उनके ऊपर काम करिए। उनके ऊपर ऑप्शंस लाइक है, क्या क्या किस किस तरह से मैं इस गोल को अचीव कर सकता हूँ, है ना। गोल को अगर आप सिर्फ गोल की तरफ से देखेंगे तो आप स्ट्रेस में रहेंगे, लेकिन अगर आपने उसके ऊपर प्लानिंग करना चालू कर दिया, काम करना चालू कर दिया, तो आपको उसके रास्ते, उसके रिजल्ट से दिखने लग जाएंगे, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि आपको दिखेगा कि आप खुश हो, है ना। किस तरह से आप कर सकते हो कोई गोल को अचीव करने के लिए? सबसे पहले तो आप अपने गोल्स को रियलिस्टिक रखिए। ऐसा भी मत रखिए कि जो अचीव न हो, और ऐसा भी मत रखिए कि जो यार एकदम आसान हो, है ना। तो ऐसा रियलिस्टिक रखिए जो स्ट्रेचेबल हो, लेकिन आपको ब्रेक नहीं कर दे। आप अपने साथ में एक रोल मॉडल रखिए। रोल मॉडल जो आपको मदद करता रहे, रोल मॉडल जिसको देख के आप मोटिवेट होते रहें। हमारे इस ग्रुप में फरूक इज द बेस्ट रोल मॉडल। आप उनसे हेल्थ के बारे में बात कर लीजिए, आप उनसे फाइनेंस के बारे में बात कर लीजिए, आप उनसे कोई अपनी फैमिली प्रॉब्लम के बारे में बात कर लीजिए, है ना। हर चीज में वो हमको सोल्यूशन दे देते हैं। तो इसी तरह से आपके लाइफ में भी एक रोल मॉडल होना चाहिए जिसको देख के आपको इंस्पिरेशन मिले। और मैं भी इसीलिए बोलता हूँ कि अगर शायद फरूक नहीं होता हमारे लाइफ में, तो ये जो मैं 120 किलो से 79 केजी पे आया हूँ, ये भी पॉसिबल नहीं होता। और एक बार जब आपने अपने गोल सेट कर लिए, आपके रोल मॉडल आ गया, आप अपने गोल को स्मॉलर स्टेप में तोड़िए। जैसे जब मुझे अपना वजन कम करना था, हमारा टारगेट था 2.5 से 3 किलो पर मंथ, और इस तरह से हमने फिर करते 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 1-1.5 साल के अंदर उसको कवर कर दिया। आपको जब भी लगता है कि आपने गोल अचीव कर लिया, तो अपने आप को थोड़ा रिवॉर्ड दे दीजिए। कुछ भी हो सकता है वो। रिवॉर्ड का मतलब ये नहीं कि फिर आप आधा किलो मिठाई खा जाओ, बिल्कुल नहीं। ओके, कोई ऐसी चीज़ जो आपके उसी गोल को अचीव करने में और हेल्प करे, ना कि उसको और पीछे ले जाए। सपोर्ट लीजिए, फैमिली का, फ्रेंड का, कम्युनिटी का। और ये चीज़ आपको यहाँ मिल जाती है इस ग्रुप के अंदर। यहाँ पर सिर्फ आपको सोल्यूशन नहीं दिया जाता, यहाँ पे आपको सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, यहाँ पे आपको सिर्फ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने को नहीं सिखाया जाता। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कभी भी आप कोई काम अकेले करने जाओ, आप अच्छे तरह से कुछ दिन तक करोगे, बाद में छोड़ देते हो। लेकिन जब कम्युनिटी रहती है, एक लोग साथ में रहते हैं जो एक दूसरे को चेयर अप करते हैं, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, तो हम उसको और आगे तक ले जाते हैं और बने रहते हैं एक दूसरे को देखते हुए। ओके, और अपने इस प्रोसेस में, गोल अचीव करने के प्रोसेस में पॉजिटिव रहिए और मोटिवेटेड रहिए। आप अपने गोल को ट्रैक करिए। आप अपने, जैसे हमने बनाया था, हमने एनुअल गोल बनाया था, उसके बाद मंथली बनाया, उसके बाद वीकली बनाया, उसके बाद डेली गोल भी बनाया है। अभी हमारे पास कई लोग ऐसे हैं जो रोज अपना वेट चेक करते हैं डेली। इनफैक्ट जब मैं अपना वेट रिड्यूसिंग जर्नी में था, मैं दिन में कम से कम 4-5 बार अपना वजन चेंज करता था, देखने के लिए कि पानी पी के मेरा कितना वजन बढ़ गया, खाना खा के कितना वजन बढ़ गया, क्या खाया तो कितना वजन बढ़ा, क्या खाया तो कितने दिन तक वो कम नहीं हुआ। ओके, वॉशरूम जाके आया तो फ्रेश होके आया तो उसके बाद कितना वजन कम हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें। तो जब आप ट्रैक करते हो तो फिर उसको आप क्रैक भी कर सकते हो। अब यहाँ पर ऐसे हैं कुछ चीज़ें जो आपको पढ़ी गई है, लिखी गई हैं, जो आपके लिए अच्छी भी हैं, आप याद भी कर सकते हो, और मज़ेदार भी हैं, है ना। 0 से लेके 10 तक नंबर लिए गए हैं और उन नंबरों को यूज़ किया गया है आपके
अच्छी आदतों को दर्शाने के लिए कि आप कैसे क्या करना है आपने। जैसे कि 0, तो आपने 0 प्रोसेस फूड खाना चाहिए। 1, एटलीस्ट 1 घंटा एक्सरसाइज करना चाहिए। 2, कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। 3, कम से कम 3 कप ग्रीन टी या फिर ग्रीन जूस पीना चाहिए। 4, कम से कम 4 मेंटल ब्रेक या फिर स्ट्रेच ब्रेक लेना चाहिए। 5, रिफ्लेक्ट ऑन 5 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर। आप हमेशा ऐसी 5 चीज़ों के ऊपर भगवान को शुक्रिया अदा करें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। ओके, रोज सुबह 6 बजे मेडिटेशन प्रैक्टिस करें। रोज 7 मिनट जोर से हंसे, है ना। रोज 8 घंटे सोने का गोल रखें। ओके, रात को 9 बजे 9 मतलब रात के 9 बजे तक सोने की तैयारी कर लें। और 10 मतलब डेली 10,000 स्टेप चलें, मतलब अपनी बॉडी को मूविंग रखें। तो ये एक चार्ट बना हुआ है ना, आप इसको समझ सकते हो। और इन्हीं चीज़ों को निचोड़ के जो हम हमेशा बोलते हैं साइन करना चाहिए आपने। इसका मतलब ये है कि आप अपने सुबह को ग्रेटिट्यूड के साथ और ऑप्टिमाइजेशन के साथ शुरुआत करनी चाहिए। अपना आपको न्यूट्रिशन खाना चाहिए अच्छी तरह से, न्यूट्रिशियस फूड बेसिकली, है ना। और फूड से अगर आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो फिर ऑब्वियसली न्यूट्रीलाइट का न्यूट्रिशन खाना चाहिए। आपके इंटेंशन और गोल्स एकदम क्लियर होने चाहिए और उनको पूरे करने के लिए अगर आपको जो भी नई चीज़ सीखनी हो वो सीखनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सरसाइज रोज़ करनी चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जिनसे हमने कई चीज़ें सीखी या कई चीज़ें पाई हैं अच्छी। हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकती है, फाइनेंस से रिलेटेड भी हो सकती है, फैमिली रिलेशन की वजह से भी हो सकती है और फैमिली की हेल्थ के लिए भी हो सकती है। और इन्हीं चीज़ों से आपको भी मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू रुचिता। थैंक यू। Thank you so much, Manoj, for amazingly summarizing everything. I think now that we've all gone through the whole session, the entire month, and the summary, I think we should be all geared up to follow and just practice, 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 keep coming back. And on that note, we'll be back with the next session, restarting it all over again until we've all imbibed and just, embodied it. So, with that, we come to an end of this session. Thank you so much. You've been a great audience. Good night. Take care. See you in the next one.